Audio Jungle. Good evening, everybody. Let's start with our today's session. The agenda is again not much difficult. We are going to see operators. In that, we will be covering few operators, and then we will be jumping on the programs. Right again. Okay. So those who were feels bored, right? ये program कब चालू होगा, program कब चालू होगा. For them, I think this is how it should be, right? They must be more happy now because we are every day doing 4 to 5 programs or more than that, or maybe even if it is simple, but it carries a concept, right? So understanding concept is important aspect of any programming, learning of any programming language actually. Okay, doesn't matter how big the program is or how small the program is. Okay, so let's start. Okay, operator. I think we have seen a couple of operators unknowingly. Few of you know all of them. Few might not be aware, but this terminology is required, right? You need to know the terminology, right? In terms of computer programming language, even if it is C, C++, Java, .NET, Angular, whatever, right? This is a common language semantic, we can say, right? So we need to understand how to talk, right? Variable is not a operator. Variable is a variable. Okay. So operator is let me yeah operator is just read what is mentioned there. Operator is a symbol that instructs C to perform some operations or actions on one or more operands. So two new terms here, operator and operands, right? An operand is something that an operator acts on. Little bit, uh, confusing word, but we need to understand that, and we are trying to understand that. An operand is a something that an operator acts on. Operator, हम पढ़ लेते हैं पहला, and then I'll explain it. And I'll again come back to this statement so that you can understand it very clearly. In C, all operands are expressions. Now ये operand क्या है, operator क्या है? Let's try, learning it. मैंने नीचे एक एग्जांपल दिया है, C equal to A plus B, right? Here, plus is an operator which operates on what? Machine operator operates machine, right? Driver operates steering, right? So same way, operator operates operands. समझ में आ रहा है क्या? तो यहां पे मैंने बहुत सिंपल लैंग्वेज में लिखा है कि प्लस इज एन ऑपरेटर वाइल A and B, A, forget about and, okay? And is just a separation between A and B. So A, B are operands. Are you understanding? तो यहां पे ऑपरेंड्स कौन है? इज सी एज एन ऑपरेंड यहां पे? No. ओके, क्योंकि प्लस ऑपरेटर हम लोगों ने बोला है यहां पे. सो प्लस इज ऑपरेटिंग ऑन A and B, which plays role of operands, right?
तो फिर सी क्या है, राइट? सी इज ऑल्सो एन ऑपरेंड बिकॉज इक्वल is again an operator. समझ में आ रहा है क्या? So that is what I'm trying to give you little background on this concept which called an operator. So we have uh, four types of operators in C programming, or as such you take any language. This is very common basic for irrespective which language you are learning. समझ में आ रहा है क्या? इसके लिए सी को मदर ऑफ लैंग्वेज बोला जाता है क्योंकि यहां से स्टार्ट होती है आपकी सब. ओके. सो वी हैव मैथमेटिकल ऑपरेटर, और इट कैन बी called as an arithmetic operator. We have assignment operator, we have relational operator, and we have logical operator. इसमें से हम लोग फर्स्ट दो देखने वाले हैं आज. I don't want to confuse you guys in one day. I can cover that, but I need the fruit to be digested by all of you, right? आप लोगों को वो आपके पल्ले पढ़ना चाहिए, आपने सीखना चाहिए. कवरेज इज नॉट माई गोल, राइट? एक आधा कोई कंसेप्ट मैं अगर नहीं सिखाऊंगा ना तो भी आप सीख लोगे बाय एंड ऑफ दिस कोर्स, दैट आई एम श्योर. ओके. बट जो मैं पढ़ाऊंगा वो आपको लाइफ में कभी रिपीट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. ओके. सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस. सो in this simple statement, right, equal is an assignment operator, और प्लस जो है ये अरिथमेटिक ऑपरेटर है, राइट? अभी अरिथमेटिक ऑपरेटर या मैथमेटिकल ऑपरेटर में वी हैव टू टाइप्स अगेन. वन इज अ बाइनरी एंड वन इज अ यूनरी. अब ये बाइनरी वो बाइनरी नहीं है जो आपने नंबरिंग सिस्टम में पढ़ा था, राइट? नंबरिंग सिस्टम में सुना था कि आपने बाइनरी पहले? हेलो. यस सर. हाँ, तो नंबरिंग सिस्टम का जो बाइनरी है, नंबरिंग सिस्टम का जो बाइनरी है, वो बाइनरी is different than this binary. This is applicable for operators. Binary means जिसके लेफ्ट साइड में कोई तो भी होता है, जिसके राइट साइड में भी कोई तो भी होता है, एंड देन ओनली इट ऑपरेट्स. आपको मैंने बोला एडिशन कर, एडिशन आती है क्या? आपने बोला हाँ आती है, करो. एक का एडिशन करो, करोगे क्या? क्वेश्चन समझ में आया क्या? यस सर. मैंने बोला वैल्यू 5 का एडिशन करो. वैल्यू 5 नो सर. हाँ, वैल्यू 5 का एडिशन करो, तो कर पाओगे क्या आप? एडिशन करने के लिए क्या जरूरी होता है? ऑपरेटर एंड ऑपरेंड. नहीं, मैंने बोला आपको कि 5 का एडिशन करो. एडिशन करो मतलब किसके साथ में करोगे आप? हाँ, Another number. करेक्ट आंसर. हमको 2 नंबर की जरूरत होती है. मनीष हैज गिवन राइट आंसर. हमको मिनिमम 2 वैल्यू की जरूरत होती है, देन ओनली यू कैन डू एडिशन. मैंने बोला भाई 20 में से सब्ट्रैक्ट कर. अरे क्या सब्ट्रैक्ट करूं मैं? हमको 2 वैल्यू चाहिए मिनिमम, तो ही हमारा सब्ट्रैक्शन का ऑपरेशन हम कर पाएंगे. तो जहां पे 2 वैल्यू लगते हैं, जहां पे भी 2 वैल्यू की जरूरत होती है कैलकुलेशन के लिए, उसके बीच में जो सिंबल रहता है उसको बोलते हैं बाइनरी ऑपरेटर. बाइनरी. यस सर.
Please mute. Yeah, because your background is coming actually. There is no problem with you talking, but your background should not disturb others. Thanks. So did you understand binary mathematical operator? What is the requirement for binary operator? कि उसके लेफ्ट साइड में भी कोई तो वैल्यू होनी चाहिए और राइट साइड में भी कोई तो होनी चाहिए, तभी काम करेगा, नहीं तो वो बोलेगा भाई मैं नहीं कर सकता काम. कंपाइलर बोलेगा प्लीज करेक्ट माय एरर्स दैट यू इंजेक्टेड. आपने जो इंजेक्ट किया एरर वो करेक्ट करो. मैं बाइनरी हूं, मेरे को दो ऑपरेंड्स लगते हैं, दो वैल्यूज लगते हैं, तो ही मैं काम करता हूं, नहीं तो मैं काम नहीं कर सकता. राइट? तो दिस इज व्हाट बाइनरी ऑपरेटर. बाइनरी ऑपरेटर के कौन विच आर द बाइनरी ऑपरेटर वी हैव. यहां पे मैंने लिखा है, अगर आप देख पाओ तो. इसमें से काफी सारे तो हमने ऑलरेडी स्टडी किए. प्लस, माइनस, स्टार. स्टार मतलब क्या है? मल्टीप्लीकेशन. कल किया हमने. इधर एक्स नहीं रहता है अपने नॉर्मल लैंग्वेज में, जैसे आप लोग एक्स लिखते हैं, राइट, फॉर मल्टीप्लीकेशन. ऐसा यहाँ पे एक्स नहीं लिखा जाता. यहाँ पे हमें ये लिखना पड़ता है, स्टार लिखना पड़ता है. ये यहाँ पे मैं बता रहा हूं. टू प्लस टू, ये प्लस चलेगा, ये लेकिन ये नहीं रहेगा तो चलेगा क्या? ये नहीं चलेगा ना, राइट? 2 + 2 = 4 ऐसा लिखते हैं ना हम लोग जनरल मैथमेटिक्स में. वही हम लोगों को कंप्यूटर के सिनेरियो में क्या लिखना है? 4 = 2 + 2. So plus is an operator. Left side and right side has to have some number or operands, right? अभी मैं इसको और एक तरीके से लिखता हूं. आंसर = नंबर 1 प्लस नंबर 2. ये भी चलेगा. ये सही है क्या वेरिएबल कि नहीं सही है? NO1 ये राइट वेरिएबल है? या गलत है? चेक. मैं भी मिस्टेक कर सकता हूं, ऐसे कुछ नहीं, मैं मिस्टेक नहीं कर सकता. अभी आप लोगों का कंपाइलर एक्टिवेट होना चाहिए. सेमीकोलन. Yeah, that is also right from C point of view. ठीक है. तो यहां पे NO1 and NO2 are operands and plus is a binary operator क्योंकि उसके लेफ्ट और राइट में दो वेरिएबल है, राइट? और आंसर क्या है? आंसर भी ऑपरेंड है, बट उसके ऊपर कौन काम कर रहा है? असाइनमेंट ऑपरेटर काम कर रहा है. असाइनमेंट ऑपरेटर, राइट? नीचे देखना आप, इस फाइल के नीचे वेरिएबल = एक्सप्रेशन. ये जो किया मैंने, सॉरी, ये जो है दिस इज कॉल्ड एज एन एक्सप्रेशन, राइट? तो ये एक्सप्रेशन मतलब राइट इक्वल के राइट साइड वाला जो भी रहेगा दैट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्सप्रेशन ऑफ दैट स्टेटमेंट. आंसर = NO1 + NO2 सेमीकोलन इज कंप्लीट वन स्टेटमेंट.
उसमें से यहाँ इस स्टेटमेंट में कितने ऑपरेटर है? यस, इक्वल टू के लेफ्ट राइट में है क्या कोई? यस आरुष, यू ऑल आर राइट। इक्वल टू के लेफ्ट राइट में है क्या कोई? दो लोग है, राइट? यस करुणा। इक्वल टू के राइट लेफ्ट में भी कोई है, आंसर है वेरिएबल, और इक्वल के राइट साइड में हमेशा स्टेटमेंट होता है, राइट? सो दिस इज ऑल्सो बाइनरी ऑपरेटर। इट कैनॉट एग्जिस्ट सिंगुलर। जहां पे पेयर की जरूरत लगती है ना, राइट, दैट इज कॉल्ड एज अ बाइनरी। 1 0 वाला बाइनरी अलग है। प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस। हाँ, तो हमारे पास कौन से बाइनरी ऑपरेटर है अभी? प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन के लिए ये नहीं यूज करते हम लोग, ये नॉर्मल लैंग्वेज में करते हैं। प्रोग्रामिंग में स्टार, कैरेक्टर नंबर 8 के ऊपर स्टार है, देन डिवीजन, एंड देन परसेंट। इसको मॉडुलस ऑपरेटर भी बोलते हैं हम लोग। इसमें से हमको पहले 4 और इक्वल टू ऑपरेटर, इसके ऊपर अपने को आज फोकस करना है, ज्यादा डीप में नहीं जाना है अपने को। रिलेशनल क्या है, लॉजिकल क्या है, बाद में से बात करते हैं उसके ऊपर, ठीक है? पहला ये छोटा कंसेप्ट है, बट ये आपको हेल्प करेगा रिलेशनल, लॉजिकल और बाकी जो भी रहेगा आगे आने वाला। यू विल इजीली अंडरस्टैंड दैट वंस यू अंडरस्टैंड दिस, राइट? लेट्स स्टार्ट विथ प्रोग्राम देन टुडेज। ओके, यूजर इनपुट। हमने यूजर इनपुट नहीं लिया अभी तक ना, वी जस्ट प्रिंटअप कर रहे हैं हम लोग अभी तक। तो अभी आज हम लोग स्कैनएफ सीखते हैं। मैं जनरल सिंटैक्स बता रहा हूं अगेन इन नोटपैड। प्रिंटफ क्या करता है? व्हाट इज प्रिंटफ? कोई जो कुछ उसमें उसके अंदर होता है वो। हाँ, तो प्रिंटफ में जो भी देंगे हम लोग करेक्ट फॉर्मेट में, वो आपको स्क्रीन पे, ब्लैक स्क्रीन पे, मतलब आउटपुट स्क्रीन पे दिखाएगा, राइट? अब आउटपुट स्क्रीन ही तुम्हारा इंटरफेस है यूजर के लिए, जहां से आप वैल्यू ले भी सकते हो और वैल्यू प्रिंट भी करा सकते हो। तो वैल्यू प्रिंट कराने का काम हमने अभी तक किया है, वैल्यू लेने का काम नहीं किया है। तो वैल्यू लेने के लिए वो आउटपुट इनपुट डिवाइस को, मतलब तुम्हारा जो प्रोग्राम है, उसने कीबोर्ड से प्रोग्रामिंग वैल्यूज एक्सेप्ट करनी चाहिए, उसके लिए उसने वेट करना चाहिए, राइट? उसका सिंटैक्स बहुत सिंपल है। स्कैनएफ इज अ स्टैंडर्ड फंक्शन। ये मैंने बहुत सिंपल लिखा, जैसा अपना प्रिंटएफ था, प्रिंटएफ से हम कंपेयर करेंगे। सेमीकोलन, प्रिंट एफ, राइट? प्रिंट फॉर्मेटेड स्ट्रिंग, स्कैनएफ, स्कैन फॉर्मेटेड स्ट्रिंग। अब इसका सिंटैक्स कैसा है? डबल कोट, कॉमा, var1, कॉमा, var2 एंड सो ऑन। यहां पे क्या था? डबल कोट, कॉमा, var1, कॉमा, var2, बराबर। क्या फर्क है दोनों में? अगर हम ये स्कैन, ये वर्ड और ये प्रिंट वर्ड,
अगर निकालता हूँ मैं डायरेक्टली निकाल देता हूँ, डोंट वरी, मैं तो वापस टाइप कर सकता हूँ। ये दोनों में क्या फर्क है मेरे को बताओ आप। यहाँ पे एक स्पेस दिया मैंने, वो हटा देता हूँ। क्या फर्क है इसमें? सेम ही। हम्म, कुछ भी नहीं है ना, इट इज सेम। सेम सर। सेम है राइट। अभी हम लोगों को डिफरेंस समझना है। ये सेम है, तो यहाँ पे हमको ये एक ऑपरेटर है, इसको बोलते हैं एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। यस सर। एड्रेस देता है। अभी डिफरेंस समझ में आया आपको? तो ये स्टेटमेंट देख के आपको समझ में आना चाहिए, ये कभी लाइफ में प्रिंटफ नहीं होगा, राइट? दिस इज रॉन्ग। ये हमेशा स्कैन करेगा और ये प्रिंट करेगा, प्रिंटफ। समझ में आ रहा है क्या? ये स्क्रीन दिख रहा है ना मेरा आपको, कि बड़ा करूं? दिख रहा है। दिख रहा है ना? हाँ। ये वापस डिफरेंस समझ में आया क्या आपको? रिपीट कीजिए ना एक बार। हाँ, डू यू अंडरस्टैंड दिस? अब ये रिपीट कीजिए ना। हाँ सॉरी, कीजिए ना। रिपीट कीजिए। नहीं आपका आवाज क्लियर नहीं आ रहा। नितिन बोल रहे? कैन यू टाइप? सर हाँ बोलो बोलो, नाउ इट्स क्लियर। बोलिए बोलिए। रिपीट कीजिए ना आप, आपने जो अभी बताया वो थोड़ा फिर से। श्योर श्योर श्योर, आई विल रिपीट। तो यहाँ पे क्या है, मैं आपको एक सिंपल दिखाना चाहता हूँ डिफरेंस। बहुत आसान डिफरेंस है, बट लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड करके बताते हैं, राइट? आई वांट टू मेक इट वेरी सिंपल सो दैट यू, आप लोग हमेशा के लिए ये बिना दिक्कत आप ध्यान में रख पाओगे। ये जो स्टेटमेंट है इसमें क्या डिफरेंस है मेरे को बताओ। इसी से अपना इनपुट लेने का भी काम होगा, इसी स्टेटमेंट से अपने को इनपुट प्रिंट करने का भी काम होगा। इसमें क्या डिफरेंस है? आई एम रिपीटिंग द स्टेप्स एक्चुअली, ओके, द डिस्कशन दैट वी हैड। बिकॉज दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये एक बार आपको समझ में आएगा तो आगे कभी तकलीफ नहीं होगा, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, राइट? ओके, तो ये सेम है, राइट? देयर इज नो डिफरेंस। अब मैं डिफरेंस कर रहा हूं, यहां पे ये लगा रहा हूं और यहां पे ये लगा रहा हूं, राइट? हाँ, तो ये जो है ना, ये एम्परसेंड बोलते हैं इसको बोलते हैं दूसरी लैंग्वेज में, दूसरे टर्मिनोलॉजी में एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। क्या बोलते हैं? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। एड्रेस ऑफ ऑपरेटर बोलते हैं इसको। समझ में आया क्या? उसका सिग्निफिकेंस क्या है मैं Yes, थोड़ी देर sir. में बताता हूं, बट आप समझ लो Yes. अभी कि यहां पे आपको स्कैनएफ लिखना है और यहां पे आपको प्रिंटएफ लिखना है। प्रिंटएफ के लिए आपको कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, एज इट इज चलेगा विदाउट एड्रेस ऑफ ऑपरेटर। अब ये एड्रेस ऑफ ऑपरेटर करता क्या है, राइट? मैंने आपको एक्स वाला प्रोग्राम बताया था कुछ समय पहले। सर यस सर। तो वो जब भी हम एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लगाते हैं तो स्कैनएफ लिखना है। यस यस, दैट्स परफेक्ट। तो जब भी आपको अभी मैं उल्टा दूसरे तरीके से बोलता हूं, जब भी आपको यूजर से इनपुट लेना है तब आपको स्कैनएफ लिखना है। जब आप स्कैनएफ लिखोगे तो जिस वेरिएबल में आपको वैल्यू रखनी है उसके पहला आप एड्रेस ऑफ ऑपरेटर लिखोगे। तो अभी थोड़ा सा फास्ट गया मैं, लेट मी गो स्लो विथ पिक्चर्स, राइट? एक मिनट दो आप। यस सर। ये स्क्रीन दिख रही मेरी आपको? यस सर। एमएस पेंट है। सर पेंटिंग। हाँ पेंट है, पेंट। तो इसको मैं क्या कर रहा हूं, एक ब्लॉक बनाया मैंने, ये ब्लॉक का नाम देता हूं मैं
ये control, हाँ, ये ब्लॉक का नाम दिया मैंने var1, राइट। ये ब्लॉक का नाम दिया मैंने var1। जैसे मैं इसको डिक्लेयर करता हूं, डिक्लेयर मतलब क्या, इंट स्पेस var1 सेमीकोलन, ये अपना डिक्लेरेशन है, राइट। अब यहां पे हेलो जब मैं ऐसा डिक्लेयर कर रहा हूं, इंट var1 सेमीकोलन var1, एक मिनट, इसको मैं बाद में से लिखता हूं। इंट var1 जब मैं लिख रहा हूं तब क्या होगा, var1 का वेरिएबल बन गया। हेलो, var1 वाला वेरिएबल बन गया और उसको एक एड्रेस मिलता है। ये आप नहीं देते, ये कंप्यूटर देता है, सी देता है 100, ये उसका पिन कोड है, राइट। अभी Yes, तक हमने sir. वैल्यू डाला है कि उसके अंदर, ये मैं रिपीट कर रहा हूं, ये ऑलरेडी रिपीट ये हो चुका है अपना, बट स्टिल यस सर मैं जा रहा हूं क्योंकि मेरे को आई वांट यू टू अंडरस्टैंड वेरी क्लियरली कि कैसा एक्सेप्ट करना है, क्यों, और एक्सेप्ट करते समय क्या क्या होता है बैकग्राउंड में, राइट। सो दैट इज व्हाट ऑल द स्टेप्स आर इन्वॉल्व हियर। सो अभी मेरे को क्या करना है, नेक्स्ट टास्क, अरे मैंने तो डिक्लेयर किया वेरिएबल var1 में मेरे को एक्सेप्ट करना है वैल्यू, या इनिशियलाइज करना है मेरे को वैल्यू। हमने कल और परसों लास्ट 2 लेक्चर में हम लोगों ने इनिशियलाइजेशन सीखा। इसको जब यस सर 12 करता हूं तो यहाँ पे 12 आता है, राइट, यहाँ पे 12 आया। इसको अगर मैं 15 करता हूं तो यहाँ पे कितना आएगा, यस सर प्लीज रिपीट द क्वेश्चन। एक मिनट, 15 हाँ, यहाँ पे अगर मैं 12 का रिप्लेस किया मैंने 15 को, तो कितना आएगा वहां पे, वेरिएबल वही है, कल भी हमने रिपीट किया था वो, डिक्लेयर वंस यूज मेनी टाइम्स। तो मेनी टाइम जब यूज करते हैं हम लोग, एक वैल्यू 1, जैसे 12 का मैंने 15 किया तो 12 100 पे स्टोर था, तो 100 के एड्रेस पे ही 15 भी स्टोर होना है, राइट, तभी वो वेरिएबल var1 में प्रिंट होगा। समझ में आ रहा है। तो स्कैनफ क्या करता है, स्कैनफ बोलता है कि भाई मेरा जो एड्रेस है ना, मेरा एड्रेस कौन है, 100, राइट। ये 100 एड्रेस पे जो भी वैल्यू यूजर डालेगा वहां पे स्टोर कर। अभी मैं यहां पे लिखता हूं, अभी मेरे को ऐसा इनिशियलाइज नहीं करना है, स्टैटिक तरीके से यूजर से लेना है मेरे को। स्कैनफ यहां पे प्रिंटफ के जैसा ही फॉर्मेटिंग देना है, %d, और क्या देना है यहाँ पे, var1। ये सही चलेगा क्या, नहीं एम्परसेंड सिंबल नहीं हाँ, इसको बोलना पड़ता है भाई कहाँ स्टोर करना है तेरे को, किस एड्रेस पे स्टोर करना है, ये स्कैनफ का डिमांड है। मेरे को एड्रेस बताओ, वहीं पे मैं डालूंगा। आप अगर कोई जैसे कुरियर है ना, कुरियर पोस्टमैन वगैरह, वो क्या बोलते हैं कि भाई आपका लेटर जो भी हो, जैसा भी हो, एड्रेस कैसा भी हो, नाम कैसा भी हो, पिन कोड बता मेरे को तू, राइट। तो पिन कोड इज नथिंग बट उस एरिया का एड्रेस होता है, वो आदमी का एड्रेस नहीं रहता है, राइट। तो उसी तरीके से स्कैनफ क्या बोलता है, भाई एड्रेस तो बता कहां रखना है तेरा वैल्यू, तो हमको बोलना पड़ता है ये एड्रेस पे रख। ये एड्रेस मतलब क्या, जहां पे 100 है, ये जो 100 है वहां पे रख। तो वो क्या करेगा, यहां पे जब आप इनपुट डालोगे, समझो 20 डालोगे, तो वो इस जगह पर जाके उसको वो 20 करेगा। समझ में आ रहा है। ऑनलाइन क्लासेस के लिए क्या है? हेलो, म्यूट योरसेल्फ प्लीज। हाँ, so here the 20 will be stored at the address of variable 1, right। फिर printf क्या करता है, printf अलग तरीके से पूछता है। printf बोलता है कि भाई सिंटैक्स देखिए, अभी printf का कैसा सिंटैक्स है, %d कॉमा var1, ये करेगा क्या,
हाँ, क्या प्रिंट करेगा ये? एरर 100. आएगा ना? एरर आएगा। ये किसने बोला अभी एरर आएगा? हम लोगों को ऑप्शन अच्छा। हाँ, साईराज। साईराज, डरना नहीं है साईराज, हाँ तो सर, सीख नहीं रहे हैं, हम लोग सीख रहे, डोंट वरी। हाँ ओके, सो हो गया मिस्टेक तो होने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो ये आउटपुट चलेगा या नहीं चलेगा? एड्रेस ऑफ var1, ये बोल रहा है एड्रेस ऑफ var1 प्रिंट करेगा, ठीक है। लेट्स डू दिस प्रोग्राम, ओके, क्विकली लेट्स डू दिस प्रोग्राम। एक्सेप्ट वन वैल्यू, ओके, एंड print like this. Check whether it is giving error as Sairaj is saying, or it will work successfully. Let's try. सब लोग मेरे साथ में करना। ये आपको समझ में आया क्या स्कैनएफ में क्या होता है? एड्रेस ऑफ ऑपरेटर का मीनिंग, ये मेरे को समझाना था आपको। ये समझ में आया ना आपको? हाँ मनीष, थैंक्स थैंक्स। तो ओके, सो डू दिस प्रोग्राम क्विकली। मैं भी ओपन करता हूं आपके साथ में। Sir, we have to do on mobile only, no? कहीं भी करो आप, इट डजंट मैटर फॉर मी। Sir, on Google Docs. कहीं पे भी करो आप, यू Okay, शुड sir. राइट सी प्रोग्राम। Okay, sir. डू वेर एवर यू वांट। मैं टीसी में टर्बो C++ में कर रहा हूं अभी के लिए। इतना कम से कम आपको लिखना है, राइट। एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं no1 जैसा लिखा था वैसे, फिर इसको स्कैनएफ करते हैं। क्या बोलेगा ये? %t डबल कोट में कॉमा एड्रेस ऑफ, वेरिएबल का नाम देना है, सेमीकोलन, printf %t कॉमा सेम स्टेटमेंट रखते हैं जैसा आपने लिखा है, एंड no1 करते हैं। मेरा हो गया, कंट्रोल F9, ओके। हाँ, अब आप देखना यहाँ पे ये आके रुका है, इसको एंटर मारो आप। क्या हो रहा है? ये अभी तक कैसा होता था अपना कि एंटर मारने के साथ वो अपने वापस प्रोग्राम में आता था, राइट। देख रहे हैं क्या सब लोग आप मेरा स्क्रीन? यस सर। ये ब्लैक स्क्रीन दिख रही है आप सब लोगों को? यस सर। हाँ हाँ, बोलो ना। बोलिए बोलिए, जल्दी बोलिए। सर एक बार आप वो कोड वापस दिखा सकते हैं? हाँ, लेकिन मैं वापस जा नहीं सकता अभी, मैं अटक गया हूँ। उसका जवाब देना है आप लोगों को, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं एक्चुअली। अभी मैं यहाँ पे एंटर मार रहा हूँ पहले के जैसा, तो ये एक्सेप्ट, ये मेरे को यहाँ से हटा नहीं रहा, प्रोग्राम में लेके नहीं जा रहा। क्यों? क्योंकि स्कैनएफ का जो रिक्वेस्ट है वो पूरा नहीं हो रहा है अपने से, क्योंकि हम लोग सिर्फ एंटर बोल रहे हैं।
मैं जब यहाँ पे कुछ डालूंगा, जैसे 12 डाला मैंने, राइट, और अभी एंटर करता हूं तो इसने -12 दिया, और अभी अगर एंटर करूंगा तो प्रोग्राम में आया। मैं कुछ समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अभी प्रोग्राम देखना है, किसी को प्रोग्राम देख लीजिए आप। ओके, ठीक है। Let's finish this program, this concept, how to accept users value from the C program, right? तो हमने क्या किया यहाँ पे, अभी इसको वापस रन करता हूं मैं। लेट्स ट्राई रनिंग दिस प्रोग्राम अगेन। कंट्रोल F9, 45, 6, 7, इसका भी एड्रेस उसने -12 दिया। ये उल्टा नहीं करता है, आप लोगों को बोलेंगे कि वो +12 का -12 कर रहा है, ऐसा नहीं है। वो एक रैंडम नंबर है वो, राइट। फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अपने केस में वो रिपीट हो रहा है, राइट। अभी क्या करते हैं हम लोग, इसको मैं अभी इसको निकालता हूं मैं। एक ये एड्रेस होता है, अच्छा, हम लोगों को 2 वैल्यू प्रिंट करनी है यहाँ पे, तो हम लोग क्या करेंगे, 2 बार %d देंगे। कल दिया था ना अपन ने, कल दिया था कि नहीं दिया था? 2 बार %d प्रिंटफ में, टेबल के इसमें, अब देख लेना आप ये। यस सर। हाँ, मैंने एक में एम्परसेंड लिखा है, एक में नॉर्मल लिखा है, कल के जैसा। कंट्रोल F9, अभी मैं लिखता हूं 555, राइट। ये किया मैंने, तो क्या हुआ, -12 आया और 555 आया। अब वो दोनों के बीच में मैंने कुछ स्पेस नहीं दिया, इसके लिए उसने वैसे ही दिया, जैसा मैंने दिया वैसा उसने काम किया, राइट। तो -12 इज एन एड्रेस ऑफ NO1। समझ में आ रहा है क्या? अभी इसको मैं क्या करता हूं, NO2 करता हूं, देखते हैं क्या करता है, कुछ चेंज करता है कि नहीं करता। NO2 कंट्रोल F9, 333, ये फिर से 12 दे रहा है। पता नहीं मेरे सिस्टम के साथ में क्या हो रहा है, बट आप लोग देखो आपका क्या आउटपुट आ रहा है, या तो ऑनलाइन पे जाके देखें। आप लोगों ने किया है क्या किसी ने प्रोग्राम? यस सर, वो आउटपुट दिखा रहा है। हाँ, जो बट भी हमने एंटर किया ना वेरिएबल का नंबर, हाँ, वो आउटपुट में दिखा रहा है और एड्रेस दिखा रहा है -12। आपका भी -12 दिखा रहा है क्या? यस, इट इज एड्रेस। यस सर। ओके, तो इट इज रियली कोइंसिडेंस एक्चुअली, ऐसा होता नहीं है, एड्रेस रैंडम रहता है, हाँ, बट ठीक है। और किसी ने किया है क्या? मैंने क्या है, पर एड्रेस बहुत बड़ा आ रहा है, -12 से ही स्टार्ट है पर बहुत बड़ा आ रहा है, एक 7 to 8 डिजिट पे आ रहा है पर। ओह रियली? ओके, तो इसको अपन एक काम करते हैं, इसको ना बहुत बड़ा अगर आ रहा है तो हम लोग वो मिस कर रहे हैं क्या यहाँ पे, इसको हम लोग LD करते हैं, फिर देखते हैं। ये दिख रहा है क्या मेरा स्क्रीन? एंटर कर देंगे, हाँ, कंट्रोल F9, अभी 6, हाँ, ये देखो एड्रेस जो है ना, वो माइनस इसके लिए बता रहा है क्योंकि उसका जो लिमिट है इंटीजर का,
वो इंटीजर का लिमिट खत्म करने के बाद वो माइनस में आ जाता है। समझ में आया? जैसे आपने रेंज देखा होगा ना, इंटीजर का रेंज कैसा, कैरेक्टर का रेंज कैसा है, -1272 प्लस 128। बट अब अगर आप 129 स्टोर करोगे कैरेक्टर में तो वो -1 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? तो इस तरह से वो हम लोग %d कर रहे हैं, लेकिन वो वैल्यू जो है वो %d मतलब इंटीजर नंबर के जो कैपेसिटी है, राइट, उससे बड़ा नंबर है। इसके लिए वो क्या किया उसने 0 से देखा, कैलकुलेट करके नहीं जम रहा मेरे को, इसमें बैठ नहीं पा रहा, तो फिर उसने साइन बिट में गया वो, और फिर उसको माइनस में कन्वर्ट करके -12 दिखा दिया। सो इट्स एक्चुअली मोर देन Generation.